students, welcome to English grammar class. Hope you all are fine. Today we will start our chapter number 12, verbs. Every sentence is incomplete without a verb. Even the shortest sentence contains a verb. A verb can even be a one-word sentence such as a stop. You cannot make a one-word sentence with any other type of words. जो verb है उसके बिना सभी sentences incomplete होते हैं, चाहे वो sentence छोटा हो या बड़ा हो, तो हमें उसके लिए verb की ज़रूरत पड़ती है. Verbs carry the idea of being or action in the sentence. For example, words like run, fight, do and work convey action. तो जो हमारे 4 words हैं वो क्या करते हैं, action को present करते हैं. जो हमारा verbs है वो एक तरह का आइडिया होता है. बट सम verbs do not give the idea of action, they give the idea of existence, of state and of being. बट जो सभी verbs हैं वो कोई एक्शन प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट मीनिंग के साथ होती हैं. लाइक बी, एग्जिट, सीम एंड बिलोंग convey स्टेट. ये सब verbs किसको बिलोंग करती हैं, स्टेट को. रिमेंबर, a verb always has a subject. For example, John speaks English. In the above sentence, John is the subject and speak is the verb. इस सेंटेंस में क्या है, जो John है वो सब्जेक्ट है और जो speaks है वो verb है. Verbs tell us what a person does, what state of being a person is in, what a person or thing has, the state in which a person or thing is. जो verb है वो हमें क्या बताती है कि person क्या है, उसका person का इसमें क्या state है और जो पर्सन है वो क्या कर रहा है और विच पर्सन क्या कर रहा है, कौन सा पर्सन क्या कर रहा है, कौन से स्टेट को कैसे करता है. फॉर एग्जांपल, फातिमा सिंग्स द नेशनल सॉन्ग. इसमें वर्ब क्या है, सिंग्स, तो ये क्या होगी, एक्शन वर्ब. वी आर वेरी एक्साइटेड टुडे. हियर हमारी वर्ब क्या है, आर, वर्ब टू शो बीइंग. लारा हैज़ अ लवली टॉय, वर्ब टू शो पोसेशन. रवि knows how to use this computer. नॉन एक्शन वर्ब. ये कैसी है, नॉन एक्शन है क्योंकि इसमें how लिखा हुआ है. द वर्ब इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आ सेंटेंस. वी कैनॉट हैव अ सेंटेंस विदाउट अ वर्ब. जो वर्ब है वो हमारे सेंटेंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम इसके बिना कोई भी सेंटेंस नहीं बना सकते. मार्टिन ड्राइव्स टू हिज ऑफिस एवरी डे. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज. हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है किसको, वर्ब्स को. है क्या है, ड्राइव्स. माई टीचर इज टेकिंग us to the theater. Here is taking. There is a clown performing funny tricks at the circus. Is and performing. The postman comes to our building every day except Sunday. Here is comes. The waitress served us some kishnut and juice served. So all these are our verbs. Without these verbs we can't complete our sentence. Ginny and Johnny love to go shopping during Christmas time. Here is love. My father takes us to the beach every Saturday. Here takes. Samir always wants to play football. Wants. The baker bakes delicious cakes and biscuits. Bakes. Doctors work both day and night. Work. Direct and indirect object. Read the sentences. Mother made dinner for my friends. These sentences have two objects, direct and indirect. To find out the direct object, we ask the question what after the verb. Find out the indirect object, we ask the question to, for, from whom after the verb. जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, क्वेश्चन में व्हाट होता है और आफ्टर वर्ब्स क्या आता है. और जो हमारा इंडायरेक्ट होता है वो टू, फॉर, फ्रॉम, होम में आता है और आफ्टर वर्ब ही आता है. Therefore in these sentences, mother made dinner for my friends. Dinner direct object. Answer the question made what. तो ये क्या था, उस आंसर का क्वेश्चन था कि उसकी मॉम ने उसके लिए खाना बनाया, किसके लिए, उसके फ्रेंड्स के लिए. My friends indirect object. Made dinner for whom, किसके लिए बनाया था, उसके फ्रेंड्स के लिए. तो ये हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस. हाईलाइट द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स वेयर दे अकर्स. निशांत क्लोज द विंडो. तो इसमें क्या है, क्लोज्ड. हिट द बॉल. हिट. द वी बॉइल द एग्स इन अ लिटिल पैन. बॉइल्ड. द किटन प्लेड विद द बॉल. हियर इज किटन. धीरज repaired his car. Repaired. The man lifted the lamp. Ring the bell now. The naughty boy broke the toy. Broke.
The principal hosted the flag. Let clothes are coins. So these are the verbs. Transitive and intransitive verbs. Read the sentences. Peter bought a hamster. Question. Peter bought but whom? Answer a hamster. पीटर ने क्या बाउट किया था और किसके लिए? अ हैमस्टर बाय किया था. सेकेंडली, अ हैमस्टर रेफर्स टू समथिंग दैट इज डिफरेंट एंड डिस्टिंक्ट विद फ्रॉम पीटर. द सब्जेक्ट देयरफॉर हैमस्टर इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज बाउट. जो हमारा सब्जेक्ट है वो हैमस्टर है, वर्ब क्या है? बाउट. In this sentence, the verb's bout is transitive because it has a object hamster. Remember, a verb which requires an object to complete its sentence is called transitive verb. जो verbs हमारे sentence को complete करती है उसे हम क्या बोलते हैं? Transitive verb. Now read these sentences. Rita danced. Question क्या है? Rita danced. What, whom? No answer. किसके लिए किया? कोई नहीं है इसमें. In this sentence, the verb danced is intransitive because it has no object. जो हमारा danced है वो क्या है? Intransitive, क्योंकि इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. अमीश इज़ अ राइटर. क्वेश्चन क्या है? अमीश what, whom? आंसर क्या है? राइटर. तो इसमें क्या है? राइटर. बट इफ़ यू लुक क्लोजली यू विल सी द राइटर रेफर्स टू अमीश हिमसेल्फ. इट डज नॉट रेफर टू समबडी और समथिंग डिफरेंट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट अमीश. देयरफॉर राइटर इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज़. तो राइटर क्या है? वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, बट वर्ब क्या है? इज़ है. A verb which does not require an object to make complete its sentence is called an intransitive verb. जो verb होती है वो क्या होती है? इसमें ऑब्जेक्ट होता है, कंप्लीट करता है सेंटेंस को, बट इसमें इसको बोलते हैं intransitive verb. Underline the verbs in the following sentence. Identify whether the verb is intransitive or intransitive and write it on the space given. हमें इनमें क्या करना है? अंडरलाइन करनी है verb को और इसमें ट्रांसिटिव और intransitive फाइंड करना है. We clean our room every day. तो उसने क्या लिखा है? क्लीन एवरी डे. तो ये क्या हुआ हमारा? ट्रांसिटिव, क्योंकि इसमें पता है वो किसके लिए कर रहा है? अपना रूम खुद के लिए कर रहा है. सुजैन गिव अ फ्लावर टू द टीचर. तो क्या है? गिव. उसने किसको दिया? टीचर को. तो ये भी सेंटेंस हमारा क्लियर है. सो ट्रांसिटिव. टीना एंड तरुण सीम अनहैप्पी. तो वो इसमें क्या है? सीम इसमें वर्ब है, तो अनहैप्पी है वो किस वजह से है? जी कोई उसमें कोई भी डिक्लेयर नहीं है, तो ये क्या है? इंट्रांसिटिव. वी लिव्ड इन अ मस्जिद फॉर 9 years. तो उसने क्या लिखा है? फॉर 9 years. इसमें उसने टाइम पीरियड दिया है, तो ये हमारा क्या है? ट्रांसिटिव. द चिल्ड्रन लाफ्ड एट द जोक. चिल्ड्रन किस चीज़ पे लाफ किया? जोक पे. तो हमारा क्या हो गया? ट्रांसिटिव. माई सिस्टर मूव द कपबोर्ड टू हर रूम. उसकी सिस्टर ने क्या किया? कपबोर्ड को मूव किया अपने रूम में. तो ये भी हमारा क्या हो गया? ट्रांसिटिव. डिड यू फाइंड द हाउस यू वर लुकिंग फॉर. तो आपने वो हाउस फाइंड कर लिया जिसको आप देख रहे थे. तो क्या हुआ? फाइंड किसके लिए? लुकिंग. तो ये ट्रांसिटिव. द मैथमेटिक्स प्रोफेसर एक्सप्लेन द लेसन. तो मैथमेटिक्स प्रोफेसर ने क्या किया? लेसन को एक्सप्लेन किया. तो दीज आर ट्रांसिटिव. माई सिस्टर एंड आई ऑलवेज डिसएग्री. तो उसने इसमें ये नहीं बताया कि किस बात पे डिसएग्री थे, तो ये हमारा इंट्रांसिटिव. द पेंटर्स पेंटर द बिल्डिंग येलो. तो पेंटर ने क्या किया? बिल्डिंग को येलो कलर किया. तो ये हमारा क्या है? ट्रांसिटिव सेंटेंस. द वॉचमैन ब्लू हिज विसल. तो विसल किया कि वॉचमैन ने विसल ब्लू की. दिस इज अ ट्रांसिटिव सेंटेंस. द कैंडल बर्न ब्राइटली. तो ये हमारा क्या है? इन ट्रांसिटिव, क्योंकि इसमें ब्राइटली है, ये नहीं बताया कि इसकी कितनी क्वांटिटी है, क्या है, कितना है, कुछ भी नहीं है. हिमा लुक्ड एट हर आर्ट वर्क. इसलिए क्या है हमारा? ट्रांसिटिव. Aditya finally got his passports. There is a transitive. The students welcome the new principal. This also a transitive. Underline the verbs in the sentence given below and classify them as transitive, intransitive or incomplete. हमें क्या करना है? इसमें से incomplete, transitive और intransitive sentence को find करना है और verb को underline करना है. The prime minister made an appeal. तो prime minister ने क्या किया? अपील की. ये हमारा ट्रांसिटिव है. द वर्ड्स आर चर्पिंग, जो इंट्रांसिटिव है. द सेलर लुक टायर्ड. दिस इज इनकम्प्लीट. द इन्फेंट क्राइड. इंट्रांसिटिव. सोनाक्षी एट द मैंगोज. दिस आर ट्रांसिटिव. द बैंकर अपीयर्ड डिलाइटेड. दिस इज इनकम्प्लीट. अंडरलाइन द ट्रांसिटिव वर्ब्स एंड सर्कल द इंट्रांसिटिव वर्ब्स इन द पैराग्राफ बिलो. जो हमारा पैराग्राफ है इसमें हमें अंडरलाइन करना है ट्रांसिटिव वर्ब्स को और इसमें सर्कल करना है इंट्रांसिटिव वर्ब्स को. मॉनसून हैड अराइव्ड. इट हैड रेन्ड हैवली ऑल नाइट. द रेन वाटर हैड फिल्ड ditch and made puddles everywhere. Fogs croaked noisily all around. Birds flapped
The farmers worked happily in their fields. Ducks swam in the ponds. The duck their heads under the water. Children carried raincoats to school. Water dripped from the roofs and the trees. Here we already these are the our intransitive words जो हमने सर्कल कर रखे हैं, जो हमारे अंडरलाइन है वो हमारे ट्रांसिटिव्स हैं. आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन दिस सेंटेंस एंड स्टेट वेदर दे आर ट्रांसिटिव टी और इंट्रांसिटिव आई. आल्सो मेंशन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द केस ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब्स. जो हमारे ट्रांसिटिव वर्ब्स हैं उसमें हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को फाइंड करना है. जो हमने ट्रांसिटिव है उसमें ही करना है, क्योंकि इंट्रांसिटिव में हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ब्स नहीं आते. अब अ गाइड टोल्ड अस एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो ये हमारा क्या है, टोल्ड ट्रांसिटिव्स है, और इनडायरेक्ट क्या है हमारा अस, और डायरेक्ट क्या है स्टोरी. आई बाउट अ पर्स फॉर हर. बाउट क्या है हमारा ट्रांसिटिव है, पर्स क्या है हमारा डायरेक्ट है, और हर क्या है इनडायरेक्ट. तो ये हमारा नेक्स्ट वाला क्या है, इंट्रांसिटिव है. द पेशेंट कफ्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. नीति स्पोक सॉफ्टली टू द चिल्ड्रन. इसमें स्पोक क्या है हमारा इनडायरेक्ट. रूपा गिव अमन 3 shells. इसमें क्या है हमारा ट्रांसिटिव है, ये हमारा इनडायरेक्ट हो गया, ये हमारा डायरेक्ट हो गया. गीता इज़ अ पोलाइट चाइल्ड, जो क्या है इंट्रांसिटिव सेंटेंस. सीमा टेंट हर आंट अ पोस्ट कार्ड. तो हमारा टेंट सेंट क्या हो गया ट्रांसिटिव, आंट क्या हो गया इनडायरेक्ट, पोस्ट क्या हो गया डायरेक्ट. द प्रेजिडेंट अवॉर्डेड हिम अ गोल्ड मेडल. तो इसमें अवॉर्डेड क्या हो गया हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया. गोल्ड इनडायरेक्ट, मेडल डायरेक्ट. नेहा लाइक्स टू ईट चॉकलेट. इसमें क्या है, लाइक्स क्या है हमारा इनडायरेक्ट. आई प्रोमिसेड दैम माई स्पोर्ट. प्रोमिसेड क्या हो गया ट्रांसिटिव, दैम क्या हो गया इनडायरेक्ट, और स्पोर्ट क्या हो गया डायरेक्ट. तो दीज आर हमारे ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव sentences, direct or with indirect objects. Helping verbs, auxiliary verbs. Helping verbs are also called auxiliary verbs because they help the main verbs in the sentence. For example, Rohan was calling his friend for a picnic. Here the word calling is the main verb and the word was is a helping verb. So है ना exclusive verbs. ये हमारे ये exclusive verbs होते हैं और helping verbs होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं? Be, do, have, is, are, am, were, was, does not, has, had, do not, can, could, may, might, shall, would, will, would, must, use, need and out. These हमारे models हो गए. Models are special verbs that express different meanings such as a permission, possibility, ability, necessity, certainty and obligation. Models express the mood of the speaker. जो हमारे models होते हैं वो different meaning के साथ आते हैं, जो क्या करते हैं हमारा different speakers के mood को express करते हैं. Models can never change their form. We cannot add s, ed, ing and so on to them. जो हमारे मॉडल्स होते हैं वो सेम ही रहते हैं, उसके साथ हम एस, ई डी और आई एन जी यूज़ नहीं करते. दे आर ऑलवेज फॉलोवर्ड बाय द बेस फ्रॉम द वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, अमित एंड रोहन कैन प्ले. नीता शुड अपेयर फॉर द रेस्ट. तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैन के साथ एस नहीं यूज़ कर सकते और शुड के साथ भी एस यूज़ नहीं कर सकते. जो हमारे मॉडल्स हैं वो सेम एज इट ही रहते हैं. अफिनिटी वर्ब्स. अफिनिटी वर्ब्स is one that has tense. Moreover, it has to agree with its objects in the person and numbers. Therefore, it changes its form accordingly. जो हमारी infinitive verbs होती है वो क्या होते हैं, like a sentence होती हैं जिसके साथ हमारे subject को agree करना पड़ता है. person वो persons भी हो सकता है और numbers भी होते हैं. Read the sentence. Dawn plays the piano. Does she help you in cooking? The highlighted words are infinitive verbs. जो plays and help है वो हमारा क्या है, infinitive verbs हैं. Infinitive verbs is limited by tenses. It can be in the present, past और future. ये तीनों sentences में हो सकते हैं present, past और future में. He comes here once a week. These are present tense. He came here twice last week. These are past sentence. Affinitive verb is limited. Affinitive verb is limited by numbers. It can be singular or plural. Affinitive verb changes its form depending on the numbers of the subject. जो affinitive verbs होते हैं वे limited numbers होती हैं, वे singular और plural both हो सकती हैं. वो depends करते हैं उनके numbers और subject पे. For example, the girl sings well. Singular subject. There is 2 girls singing
sings beautiful, plural subject. Affinity verb is limited by person, that is it has to change according to the person. For example, I eat my dinner at 8 o'clock, she eats her dinner at 9 o'clock. तो इसमें क्या है, I is the first person, she is the third person. Non-infinitive verbs, remember, a verb that does not change its form even when the person or number of the subject changes is called a infinitive verb. जो verb है इसमें change नहीं होती है, इसमें persons and numbers subject को change कर सकते हैं but verbs को नहीं, verbs को ही change करते हैं. अदिति speaks Chinese very well. Here is, तो हमने इसमें क्या करना है, फिनिटिव वर्ब्स को सर्कल करना है. स्पीक्स क्या हमारा फिनिटी. साहिल ट्राई टू रन फास्ट, देयर इज़ अ ट्राइड, ये भी हमारा फिनिटिव वर्ब है. लीला हैड अ फ्लैश्ड लुक ऑन हर फेस, हियर इज हैड. महंत गोज टू द मार्केट एवरी डे टू फैच मिल्क, गोज. Pia and Paku are writing a letter, here is are. Sheetal is doing her homework at the moment, is. They drive very fast, we went for a walk around the park, here is went. Form of verbs. The form of verbs changes express the present, past or future. For example, Bhavesh eats breakfast at 8 o'clock. In this sentence, the verb is indicate that it is an action that takes place regularly. For example, Bhavesh ate breakfast at 8 o'clock. Here is 8 indicates that the action that took place earlier. Will eat indicate इसमें क्या करता है, take place later, जो कि उसके बाद के बारे में. Thus verbs are used to indicate the time when an action takes place. When a verb undergoes such a change, it is said to be in present tense, past tense and future tense respectively. इसमें हमने क्या किया, verbs को change किया तीनों forms में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर्स में. तो हमारे साथ क्या हुआ, वर्ब की फॉर्म चेंज हो गई और इसके साथ विल ऐड हो गया. तो होप यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द वर्ब्स. थैंक यू, हैव अ गुड डे.